A very good morning, my dear students. My name is Vibhas Tiwari, and I welcome you all on the first day of 2022. This is the 1st of January 2022, Saturday, and I wish you all a very happy new year. One message from my side only to you: consistency, hard work, and patience is the key to success. And whatever task you want to complete, you need to devote the time for it. जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग समय देना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, यू विल गेट द सक्सेस. नाउ वी आर स्टडिंग इन योर क्लास 10th CG बोर्ड सोशल साइंस लेसन 15 पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. And this is the part 2 of this lesson. In this first part, we have completed introduction part. Part 1, we have completed elections, what and why, voting process, electoral behavior in India, and we have also studied in the part 1 how many people cast their vote. Today, the topic is what are the factors that influence voters. As I always remind you, the methodology with patience. Patience is the key to success. धीरज अगर आपके पास नहीं है, धैर्य के साथ आप नहीं पढ़ सकते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. पेशेंस इज द की टू सक्सेस. ओपन योर बुक, पेज नंबर 213. गेट रेडी विथ पेन एंड पेपर and you will get Hindi interpretation of your book. Read along with me and make notes along with reading while you read. While you are reading, make notes also. So let's start, learn something new today. चलिए आज कुछ नया सीखते हैं. What are the factors that influence voters? यानी कौन कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालती है. वोटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स एट द टाइम दे कास्ट देयर वोट्स. मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं. ऑन द वन हैंड, द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड नेशनल पॉलिसीज play an important role in influencing their decision. मतदाताओं के सामने एक ओर देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों पर राय आदि तत्व महत्व रखते हैं. At the same time, narrower interest such as caste, religion, regionalism, language, and the pressure of powerful local people also influence their voting behavior. लेकिन साथ साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं. Another common feature seen in election is that many candidates try to influence voters with money, liquor, and other incentives rather than their policies and programs. अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब व अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं. But political analysts point out that whatever the voters feel that there is some grave danger facing the nation or fundamental changes are needed, they forget their sectarian interest when they cast their votes. राजनीतिक विश्लेषण करने वाले यह भी बताते हैं कि जहां मतदाताओं को लगे
कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में हैं या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया है। For example, when the declaration of the emergency posed a danger to Indian democracy, the people cast a decisive vote against the emergency in the 1977 election. उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल एक खतरा बना, तब भारी मतदान करते हुए मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। In the same way, the Congress party won an unprecedented majority in the 1984 elections because of the sympathy wave following the assassination of इंदिरा गांधी। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, एक बार फिर भारी मतदान हुआ और लोगों ने कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया। It is generally seen that voters are sensitive to the issues such as the performance of the ruling government, the credentials and credibility of the candidates, and the promises that the parties make in their election manifesto. आमतौर पर यह देखा गया है कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और संपर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। टेलीविजन, सोशल मीडिया and newspaper also exert their powerful influence on voters. वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए प्रचार से भी मतदाता काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। Thus, we can see that many factors influence the behavior of the Indian voter. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। These factors differ from region to region and from time to time. लेकिन यह अलग अलग समय तथा क्षेत्रों में ये तत्व भिन्न भिन्न हो सकते हैं। But what is important in a democratic system is that people participate in the elections. किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग ले। It is also important for them to weigh the electoral issues carefully before casting their vote. मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करें और उसके आधार पर मतदान का निर्णय लें। Now the question for you: among the factors listed above that influence voter behavior, which factors are important in influencing voters in your area? ऊपर बताए गए मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कौन कौन से तत्व आपके क्षेत्र में मतदान को प्रभावित करते हैं? हाउ डज कास्ट इन्फ्लुएंस वोटर्स? जातिवाद मतदान को कैसे प्रभावित करता है? नाउ फिल इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्कशन। निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। नाउ बेटा, द फर्स्ट, हाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लोकल इलेक्शंस। अब स्थानीय निकाय के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व। अब लोकल इलेक्शन है, स्थानीय निकाय, उनको प्रभावित करने वाले तत्व हो सकते हैं। जैसे इस कॉलम में लोकल प्रॉब्लम्स, सीवेज की प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे लोकल प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लीनलीनेस, टैक्स, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन,
and their caste effect. Second, factors that influence विधानसभा इलेक्शन. अब विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व. These may be the factors: policies of political parties, local language and personality of candidates and their behavior. Now third, factors that influence लोक सभा इलेक्शंस. अब लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व. These factors may be national and political problems and need of new policies. So in this way you can complete this table. The next topic of the day is representation in Indian political organization. Second, भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व. रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व. देखिए, रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन. राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी जन सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है. Representation tells us the level of people's participation in political organizations that represent the interest of different classes in society. इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर समझा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कितनी सहभागिता है. It also tells us whether all classes are actually represented in the organizations or not. इससे यह भी पता चलता है कि क्या सभी वर्ग इन संस्थाओं में यथार्थ ढंग से प्रतिनिधित्व हासिल कर पा रहे हैं या नहीं. The Indian Constitution stipulates a three-tiered government system. भारतीय संविधान में शासन के 3 स्तरों की व्यवस्था की गई है. एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, पीपल चूज देयर लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू जनरल इलेक्शंस. केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है. द पीपल आल्सो चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स to the state government and the local government through elections. राज्य स्तर पर विधानसभा और स्थानीय शासन के लिए भी जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं. Let's try and understand how the different social classes are represented in the Lok Sabha, Vidhan Sabha and local government. आइए अब हम लोकसभा और स्थानीय निकायों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को समझने की कोशिश करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन द लोकसभा. लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व. टेबल 15.2. दिस इज टेबल 15.2. टेबल 15.2 will help you to study women's representation in the Lok Sabha. अब लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए नीचे दिए गए टेबल का अध्ययन करें. Now the question. First, study this table. Participation of women in the Lok Sabha. लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी. Year 1951 to 2014. Number of women candidates, महिला उम्मीदवारों की संख्या in this column. For example, 1957 number of women candidate 45. In the third column, percentage of women candidates, कुल महिला उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत, यानी यहाँ पे इन दिस कॉलम 3%, राइट. नंबर ऑफ वीमेन मेंबर्स 22, महिला सांसदों की संख्या.
एंड परसेंटेज ऑफ वीमेन मेंबर्स 4.5। देखिए थर्ड कॉलम में परसेंटेज ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स हैं, देखना इसको। हाँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ वीमेन मेंबर्स हैं, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वीमेन मेंबर्स हैं, और नंबर ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स हैं। देखिए यहाँ पे कॉलम में, इन दिस कॉलम, जैसे ईयर 1957, अब 51 में तो ब्लैंक है, नो डाटा इज नॉट अवेलेबल। 1957 में देखिए सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ वीमेन कैंडिडेट है, महिला उम्मीदवारों की संख्या, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स, महिला उम्मीदवारों की संख्या, और परसेंटेज ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स यानी कुल उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवारों की संख्या। Now on the basis of this table, answer the questions. How many women members does the current Lok Sabha have? एक आदर्श संसद में देखिए हाउ मैनी वीमेन मेंबर्स डज द करेंट लोकसभा हैव। वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वीमेन मेंबर्स एंड देयर परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। चेक वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी 1957 से क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे 1957 से या लगातार महिला सदस्यों की संख्या और उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, पता कीजिए। राइट, ये सही है कि गलत है। Which election saw the lowest number of women members elected? Why do you think their number was so low? Give reasons. अब किस चुनाव में सबसे कम प्रतिशत महिलाएं जीत पाई, उसका क्या कारण रहा होगा। लेट्स गो अहेड, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स is a percentage of the total number of candidates, indicates the political participation of women. कुल उम्मीदवारों में से महिला उम्मीदवार कितनी हैं, यह भी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का एक सूचक है। If there are 10 candidates in an election constituency and if all 10 candidates are male, we can say that women are not politically active in that constituency. अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कुल 10 उम्मीदवार हैं और वे सबके सब पुरुष हैं, तो हम कहेंगे कि महिलाएं वहां सक्रिय नहीं हैं। If more than half the candidates are women, we can say that women's participation is strong. अगर आधे से अधिक उम्मीदवार महिलाएं हैं तो यह कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। Currently, the percentage of women candidates who contest elections average 8%. वर्तमान में लगभग 8% महिला उम्मीदवार हैं। That means for every 92 male candidates, there are only 8 women candidates. यानी कि 92 पुरुष जहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं केवल 8 महिलाएं तैयार हैं। दिस नंबर फ्लक्चुएट्स फ्रॉम इलेक्शन टू इलेक्शन। यह भी हर चुनाव में कम ज़्यादा होते रहते हैं। A rally demanding 33% reservation for women in state assembly. फिगर 15.3 इसमें यह बताया रहा है कि महिलाओं को विधायिकाओं में 33% आरक्षण की मांग को लेकर एक रैली। Now the question is, what do you think are the reasons why political parties have so few women candidates? आपके विचार में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को अधिक संख्या में खड़ा क्यों नहीं किया जाता? Seeing the current situation,
Do you think it is right to reserve 33% seats in the Lok Sabha for women? इन सब बातों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उचित होगा? If the percentage of women members reaches 50%, how do you think this will affect policies and politics and society? यदि महिला सांसदों की संख्या 50% हो जाए तो समाज और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? Study the following graph and state which country has the most women members in parliament and which has the least. Now this is the graph. You need to study percentage of women members of parliament in different countries. विभिन्न देशों में महिला सांसदों का प्रतिशत। अब इस ग्राफ को पढ़कर बताएं कि किस देश की संसद में सबसे अधिक और सबसे कम महिलाएं हैं। नाउ विच कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान हैज द मोस्ट वीमेन मेंबर्स इन पार्लियामेंट। अब ये जो ग्राफ है इसको पढ़ के स्टडी करके बताइए कि दक्षिण एशिया के देशों, ध्यान से सुनना, साउथ एशियन कंट्रीज, दक्षिण एशिया के देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में से किस देश की संसद में सबसे अधिक महिलाओं की उपस्थिति है? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज, यानी स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। The 73rd and 74th constitutional amendments created a third level of government in local bodies. संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा, यानी 73rd और 74th संशोधन द्वारा सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। These local bodies had 33% reservation of seats for women members. इन निकायों में प्रारंभ से ही महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई है। Thus, large numbers of women were elected as members of these bodies. इस प्रकार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। In many states, the number of reserved seats was raised to 50%. कई राज्यों में यह आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया है। The next topic is representation of scheduled caste and tribes in the Lok Sabha. The representation of scheduled caste and tribes in the Lok Sabha. लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व। The socially, educationally and economically deprived classes of society are listed as scheduled caste and tribes in the Constitution. हमारे संविधान में सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से समाज के वंचित वर्गों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। Seats have been reserved for these communities in the Lok Sabha and Rajya Sabha in proportion to their percentage in the country's population. लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। Thus, 84 seats were reserved for scheduled caste and 47 for scheduled tribes in the 16th Lok Sabha. 16वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। Similarly, seats have been reserved for these classes in the
state assemblies in proportion to their percentage in the state's population. इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है. Seats have also been reserved in local governments, that is, the panchayats and urban bodies. साथ ही स्थानीय शासन अर्थात पंचायतों और शहरी निकायों में भी इन वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है. So my dear beautiful students, this is sufficient in this video lesson. Again, I wish you all a very happy new year, and just I want to remind one message: patience is the key to success. धीर में ही खीर है, याद रखना. मेहनत कीजिए and you will get your objective. You will achieve your aim. So I say bye bye to you. See you again.